Good morning to all of you. Today we are continuing with the chapter of class 10th economics and the topic is development. We have learned about various perspectives of development and there is no particular definition of development and it is simply an idea. Development refers to idea and the word which are closest to explain about development is progress and growth. There are two words which comes closest to understand and to explain the meaning of development. And these two words are, who can tell me? These two words are progress and growth. With these two ideas, actually, we are talking about development. So, personal development and national development. We have already learned about personal development. People want money, people want recognition, respect, opportunity, peace, all right, security. So if we are secure, then we can say that our country is very developed. If you are getting opportunity in this country, then you can also think that this country is very developed country, which gives you opportunity. All right. Likewise, if there is equality, if there is respect, if there is internal peace and harmony, so these are also the ideas which complement the term development. Besides that, we have learned that net attendance in the school, literacy rate, health of the individual, body mass index, and human development index, then the infant mortality rate, all these new elements have been brought together with the idea of development. So many new ideas have come and that has actually tried to explain and understand the same topic, development. In our childhood days, development means only growth. Development meant only progress. All right, if you are having more and more money, you are developed. At what cost you have earned your money? At the cost of your health, at the cost of your family, at the cost of your environment. These things were never thought of. हर हाल में हमको अपना पैसा कमाना है और हम इसी को डेवलपमेंट समझते थे. So the whole world learned that if we burn more fossil fuels, the whole world learned if we use more natural resources, the country which is producing more iron, steel, constructing more factories, employing more and more people. So those countries were considered as developed. So they were actually using the resources to the maximum potential. Now the concept of development and the concept of progress has also changed. Now there are some cost of development. The cost of development is environmental cost, family, how family members are sacrificing, how you are compromising with your own mental health, physical health, and only your motive is to earn money. So these things are also now considered for development. So we simply say the indicators. We simply say indicators. Nowadays we see the IPL match. In the IPL match, they are keeping track of all the players playing in the field, how much they run, how many catches they have taken, how many runs they have saved in the field, how many runs they have scored at what strike rate, and in what circumstances those runs have come, or the wicket being taken. All these things are taken into consideration. कितने लोगों को बात समझ में आ रहा है? थोड़ा हैंड रेज कर सकते हो, अनम्यूट करके बोल सकते हो. आईपीएल हम लोग देखते हैं. आईपीएल में एक प्लेयर को हम लोग वोट भी देते हैं. आईपीएल में जो है, हाँ चलो हमको जो है एक हैंड देख गया है सिद्धि विनायक का. तो
ये जो आईपीएल में कोई प्लेयर कितने वैल्यूएबल है वो असेसमेंट बहुत तरीके से होता है। फील्ड में कैच लिया उन्होंने, फील्ड में जो है कितने रन सेव किए, उनका थ्रो कितना एक्यूरेट आया, बॉलिंग के समय कितना इकोनॉमिकल बॉलिंग किया, कितने विकेट लिए, बैटिंग के समय की स्ट्राइक रेट से बैटिंग किया, ये सब कुछ जो है वहाँ रिफ्लेक्ट हो जाता है। और उसके बाद हम लोग बता सकते हैं कि ये प्लेयर वैल्यूएबल प्लेयर है या नहीं है, मैच विनर है या नहीं है, गेम चेंजर है या नहीं है। तो इस तरह से हम लोग जो है डेवलपमेंट के इंडिकेटर्स को हम लोग फाइंड आउट करते हैं। और ये सारी चीजें हम लोग क्लासरूम में डिस्कस कर लिए। अब नेशनल डेवलपमेंट में दो क्वेश्चन लिखते हैं। कैन ऑल आइडियाज बी कंसीडर्ड इक्वली इंपॉर्टेंट? आंसर नो आता है। आज के डेट में सबसे इजी आंसर है नो। ऑल आर नॉट इक्वली इंपॉर्टेंट, और एक लेक्चर दे देना है उसके लिए, कैन हैव अ लॉन्ग लेक्चर अबाउट which is important and which is not important. Then next question, if there are conflict, then how will one decide? So conflict in India, the best example of conflict is North Indians and South Indians. अभी इलेक्शन टाइम है इंडिया, तो इंडिया तो है इलेक्शन करा रहा है, लेकिन नॉर्थ इंडिया के लोगों का ख्याल अलग है, साउथ इंडिया के लोगों का ओपिनियन अलग है। एक क्लास में ही हम बोले थे कैन हिंदी बी द नेशनल लैंग्वेज, साउथ इंडिया वाला इमीडिएट बोलेगा नो, यू फर्स्ट ऑल्सो इंक्लूड तमिल एज नेशनल लैंग्वेज। वो बोल देंगे तमिल को नेशनल लैंग्वेज। नॉर्थ इंडिया वाले ऑब्वियसली क्वेश्चन करेंगे क्यों भाई तमिल को नेशनल लैंग्वेज बनाए। वो पूछते हैं क्यों हिंदी को नेशनल लैंग्वेज बनाएंगे, हम लोग कभी हिंदी नहीं बोलते हैं, हम लोग तमिल तेलुगु कन्नड़ ये हम लोग बोलते हैं, कहीं मराठी बोलते हैं, कहीं उड़िया बोलते हैं, बंगाली बोलते हैं, ऐसा क्या है? तो हम लोग प्रूव करेंगे 5 स्टेट्स में है हिंदी, यूपी में है, बिहार में है, झारखंड में है, छत्तीसगढ़ में है, मध्य प्रदेश में है, हरियाणा में है, यहाँ हिंदी बोले जाते हैं। तो इसलिए हिंदी को नेशनल लैंग्वेज मानना चाहिए। लेकिन और स्टेट बोलेंगे हम लोग अपना स्टेट में अपना लैंग्वेज को हम लोग नहीं खोना चाहते हैं। सो हियर आर एग्जांपल्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। यहाँ हम कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बता रहे हैं। कॉन्फ्लिक्ट का कहना ये है झगड़ा। कॉन्फ्लिक्ट मतलब झगड़ा, झंझट, फसाद, उलझन, इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट। सिंपल बात है, फाइट। अगर लोग लड़ने लगे कोई मुद्दा को लेके, इशू को लेके, तब हम डेवलपमेंट करें कि कॉन्फ्लिक्ट रोके। तुम्हारे तरफ से कोई आंसर है क्या? हिंदी और तमिल और तेलुगु मन ये करना स्टार्ट करना अच्छा है, या इसको जो है इसमें तरीका ढूंढना है, डेवलपमेंट के रास्ते ढूंढने हैं? क्या 2 लैंग्वेज को, क्या 3 लैंग्वेज को, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज को जगह दे सकते हैं? हमारे पास जो पर्स में नोट है वहां पे 16 लैंग्वेजेस प्रिंटेड है। तो ये जब ऑफलाइन क्लास में आएंगे तो हम तुम लोग को दिखा देंगे कि कैसे हमारे करेंसी नोट्स में भी, हम अभी भी अगर होगा तो हम कैमरा में दिखाएंगे कि कितने लैंग्वेजेस में हमारे नोट्स जो है वो यहाँ, यहाँ देखो कितने सारे लैंग्वेजेस लिखे हुए हैं। कैन यू सी? और किसी के पास अगर मान लो रुपीज है तो ये देख सकते हो, यहाँ पे इंडियन लैंग्वेजेस में लिखा गया है, ये कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए कि नहीं भाई डेवलपमेंट पहले जरूरी है। अभी लेटेस्ट जो ये है इस बार का इलेक्शन का, ये है वन नेशन वन पोल, कॉन्फ्लिक्ट का एक और एग्जाम्पल। इसका मतलब है कि इंडिया एक ही कंट्री है, एक ही वक्त में पूरे इंडिया में वोट हो जाने चाहिए, एक ही वक्त में पूरे इंडिया में वोट हो जाना चाहिए। इस पर अलग अलग ओपिनियन आ रहा है पॉलिटिकल पार्टीज का। कांग्रेस कुछ कह रहे हैं, बीजेपी कुछ कह रहे हैं। बीजेपी तो ये एजेंडा को पुश कर रहे हैं, वन नेशन वन वोट, वो अपना लॉजिक दे रहे हैं, कांग्रेस अपनी लॉजिक दे रहे हैं। अब तो ये टाइम डिसाइड करेगा हमारे कंट्री में कि ये जो है हमारा कंट्री वन नेशन वन पोल करा पाता है कि नहीं, वेदर इट इज पॉसिबल और नॉट।
फिर भी तुम लोगों को बता दे रहे, बड़ा तुमको होना है, अगला साल तुम्हारा 11 होगा, 12 होगा, और तुम भी वोट देने लगोगे। हो सकता है ये एजेंडा एजुकेटेड यूथ और अभी जो प्रेजेंट जनरेशन है वो अपना लॉजिक से सोचे कि क्या सुटेबल है, वन नेशन वन पोल या वन नेशन एंड डिफरेंट टाइम्स ऑफ पोलिंग, डिफरेंट टाइम्स ऑफ इलेक्शन। तो ये हमारे कंट्री में हम कुछ क्वेश्चन रख दिए हैं और हेडिंग दे दिए हैं नेशनल डेवलपमेंट। तुम्हारे ऊपर है, अपना विचार रख सकते हो सही गलत के लिए, यहाँ पे कोई पनिशमेंट नहीं है और ना ही सही बोलने पर कोई प्राइज है, रिवार्ड है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अपने ओपिनियन जो है वो तुम जरूर दे सकते हो। और यहाँ पे ही हम लोग जो है ये टॉपिक्स जो है डिस्कस करने से ये जो है तुम्हारे विचार मुझे समझ में आएंगे, मेरे विचार मैं तुम्हें समझा पाऊंगा। अभी नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देंगे, अभी हम यहाँ पे दो हटाएंगे और एक और क्वेश्चन लिखेंगे। यहाँ हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। What would be a fair path of judgment? सही रास्ता क्या है डेवलपमेंट तक पहुंचने का? सही रास्ता क्या एक होगा? मेरा क्वेश्चन यही है, क्या डेवलप करने के केवल एक ही रास्ते हैं जिसमें सबको चलना? क्या सचिन तेंदुलकर अगर अगर 12 पास कर जाता, वो कॉलेज जाता, यूनिवर्सिटी जाता, तो क्या वो क्रिकेट खेल के भारत रत्न बन पाता? तुम अनम्यूट करके आंसर दे सकते हो। मेरा यही क्वेश्चन है, सचिन तेंदुलकर अगर सिर्फ स्कूल कॉलेज जाता, पढ़ाई करता, एग्जाम पास करता, नौकरी की लाइन में धक्के खाता रहता, इंटरव्यू फेस करता, वो ये सारे रिस्क उठा के उन्होंने क्रिकेट खेला, वो सारे रिस्क उठाए हैं, अपना करियर का रिस्क था, वो पढ़ नहीं रहा था, लोग ताना मारते थे उनको, कुछ नहीं होगा तुम्हारा फ्यूचर जो है बिल्कुल जो है, तो लोगों की बात सुन के वो जो है अपना धीरज नहीं खोया, और वो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड पार्टनरशिप, स्कूल लेवल का मैच था, क्रिकेट मैच था, और वो एक रिकॉग्नाइज्ड मैच था वहाँ महाराष्ट्र का। तो उसमें वो वर्ल्ड रिकॉर्ड रन स्कोर किए, पार्टनरशिप्स में इन्वॉल्व थे वो और विनोद कामली, और फिर इंडियन टीम में सेलेक्ट हुआ, यंगेस्ट प्लेयर टू हैव रिप्रेजेंटेड द कंट्री। और समझ लो कि आज वो भारत रत्न बन गए हैं। हमको लग रहा है चैट में भी कुछ हमारे पास आया है, कोई कोई बच्चे हो सकता है कि चैट में भी वो लिखे हैं। देख लेते हैं। बोर्ड इज नॉट क्लियर लिख रहे वैभव जी, और जिया लिख रही है नो देयर इज नो सिंगल पार्ट टू डेवलपमेंट, तो वो नो बोल रहे हैं। बोर्ड क्लियर नहीं है तो हो सकता है इंटरनेट प्रॉब्लम हो वैभव भी। और हम तो बोल रहे हैं, सारी बातें हम बोल बोल के हम बता रहे हैं, तो हमको लगता है कि उसमें थोड़ा सा और हम लोग जो है नजदीक आ गए हैं, वो फोकस ज्यादा करने की कोशिश कर रहे हैं। अब यही क्वेश्चन है, व्हाट वुड बी ए फेयर पाथ ऑफ जस्ट पाथ फॉर ऑल? क्या डेवलपमेंट को अटेन करना, ऑब्टेन करने के रास्ते केवल एक होंगे? आंसर इज नो। मेरे ओपिनियन में नो है, क्योंकि डेवलपमेंट का आइडिया में एक अकेला कोई टॉपिक नहीं है। उसको प्रोग्रेस भी बोल रहे हैं, उसको ग्रोथ भी बोल रहे हैं, उसको हैप्पीनेस भी बोल रहे हैं, रेस्पेक्ट भी बोल रहे हैं, उसको मनी भी बोल रहे हैं। तो बहुत सारे इंडिकेटर जब हम जोड़ के डेवलपमेंट को समझ रहे हैं तो जरूर रास्ते भी अलग अलग होंगे। यही मेरा समझाने का आज का पर्पस है कि डेवलपमेंट कोई सिंगल वर्ड से नहीं समझ सकते हैं। तो डेवलपमेंट को हासिल करने का भी कोई अकेला
रामबाण नहीं होगा, कोई अकेला लक्ष्मण का लकीर भी नहीं होगा, या कोई सिंगल्ड मतलब जो है स्ट्रेटेजी जो है वो नहीं होंगे। ठीक है, तो ये मेरा ओपिनियन है, तुम्हारा ओपिनियन भी जरूर वेलकम है। अगर कुछ होगा ऑफलाइन में भी अगर बताना चाहोगे तो बता सकते हो। अब तुम लोग अनम्यूट करके भी अगर किसी को रिस्पॉन्ड करना है तो रिस्पॉन्ड कर सकते हो। तो नेशनल डेवलपमेंट में हम लोग क्वेश्चंस करते हैं, और इस क्वेश्चन को अगर हम अलाउ करते हैं, जैसे जर्मनी में कोई क्वेश्चन नहीं रेज कर सकता, चाइना में अभी भी कोई सवाल नहीं पूछ सकते हैं, इंडिया में तो हम लोग बोल दिए हैं चौकीदार चोर है, इनडायरेक्टली किसको बोल दिए हैं। ये डेमोक्रेसी की जो है, रियल डेमोक्रेसी का सक्सेस यहाँ पे है कि यहाँ पे हम लोग हेड ऑफ द नेशन को भी कटघरे में ला सकते हैं, क्रिटिसाइज कर सकते हैं, और वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से करे तो अलाउड है, बेहतर लगता है। तो ये जो है हमारे कंट्री में जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, वो लोगों को इतने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दे के रखे हैं, फ्री चॉइस दे के रखे हैं, लेकिन वो अपील करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि चॉइस शुड बी मीनिंगफुल और फ्रीडम शुड बी हैविंग सम लिमिट्स। और क्लास 9 में भी हम पढ़ाए थे लिमिट्स, तो वही सब लिमिट्स यही है कि हम किसी को रिलीजियन के नाम में डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे, और हम रात को 2 बजे डीजे नहीं बजाएंगे, और हम जो है नो हॉर्न जोन, हॉस्पिटल है, स्कूल है, वहाँ गाड़ी की हॉर्न ना बजाए। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हमें बताती है लिमिट्स टू एक्सरसाइज द राइट टू फ्रीडम, है ना। देयर इज वी आर हैविंग फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट एनी आर्म्स, हम आर्म लेके कहीं असेंबल नहीं होंगे। ये सारी चीजें जो है हमारे लिए एक डेवलपमेंट का रास्ता खोल देती है। अब थोड़ा सा इस चीज को अभी हम लोग जो है चेंज करेंगे टॉपिक में, है ना। तो नेशनल डेवलपमेंट जो है वो अभी हम एक वर्ड लिखेंगे, इंक्लूसिव। ये वर्ड है, अगर कोई बच्चा क्लास में नहीं पढ़ता है उसको क्लास से बाहर कर दे, और हम तारीफ करेंगे कि मेरे क्लास में एक भी बच्चा फेल नहीं होता है। क्या हम सही है? जो नहीं पढ़ता है हम उसको बाहर कर दिए क्लास से, जो फेल होता है हम उसको रोज ह्यूमिलिएट करते हैं, डांटते हैं। क्या ज्यादा अच्छा है डेवलपमेंट का? क्या मतलब ये एग्जाम लेके हम कंपेयर करेंगे कि बच्चा 1 रैंक लाया, 2 रैंक लाया, 3 रैंक लाया? पेरेंट को भी हम लोग यहाँ समझाते हैं कि कंपेयर मत करिए, अपने बच्चे का प्रोग्रेस आपके सामने जो है, आपके घर में ही बच्चा है, उसको देखिए, उसके मैनर अच्छा है तो उसको अप्रिशिएट करिए, उसको कभी उस पर जो है उसका हौसला बढ़ाइए, ना कि उसका हौसला को जो है कमजोर करिए। वो बच्चा डेवलप करेगा। तो यहाँ हम एक वर्ड लिखे हैं, इंक्लूसिव। आज के डेट में 21st सेंचुरी सोशल साइंस स्किल में ये वर्ड बहुत जरूरी है। ये गवर्नमेंट बोल रही है इंक्लूसिव एजुकेशन। जो अपाहिज है, जो चल फिर नहीं सकते हैं, जिनका बौद्धिक विकास नहीं हुआ है, मेंटल डेवलपमेंट नहीं हुआ है, उन लोगों को क्या पूरा छोड़ देना है जिंदगी भर उनके हाल पे, या उनको केयर करना है, उनको कुछ सिखाना है, उनको टाइम देना है? बहुत सारे लोग हैं जो इनका मेंटल ग्रोथ नहीं हुआ है, तो उन लोगों के साथ सहानुभूति दिखाना, उनको इंक्लूसिव वे में अपने साथ शामिल कर लेना, अपने जिंदगी का हिस्सा, अपने फैमिली का हिस्सा बनाना, ये सारी चीजें जो है हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट का एक पार्ट है। ऐसे लोगों की बहुत कमी है जो दूसरे के लिए सोचते हैं। हमारे प्लेनेट में अपने लिए सोचने वाले लोग बहुत ज्यादा हो गए हैं, थोड़ा दूसरे की तकलीफ को लेके सोचने वाले लोग थोड़े कम हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं पैसे में तो वो लोग बहुत अमीर हो गए, लेकिन व्यवहार से, व्यवहारिकता से, पर्यावरण से, जानवरों से
दूसरे इंसान से जो है उनको जो है कहीं ना कहीं वहां पे थोड़ा काम करना है, उनको वहां कुछ पैसे नहीं कमाने हैं, इज्जत कमाना है। तो ये मेरा है एक, ये नेशनल डेवलपमेंट में हमको सबको लेके चलना है। तो ये इंक्लूसिव हम जो है वर्ड एक लिख दिए हैं जिसमें बहुत कुछ है inclusive। इसमें एजुकेशन से शुरू करते हैं। वैसे लोग जो नहीं पढ़ पाते हैं और मेंटल उनका डेवलपमेंट नहीं हुआ के लिए भी अगर कुछ हम सोच लेते हैं तो उसमें हमारा बड़प्पन ही है। हम तो उसको जरूर अपना डेवलपमेंट का पार्ट मानते हैं। इंक्लूसिव जो है इंक्लूसिव आइडिया देख सकते हैं, इंक्लूसिव एक्टिविटीज देख सकते हैं। ये जो है हम लोगों को इनके और एग्जाम्पल ढूंढने हैं और ये वर्ड को हम लोग और समय रहते जो है हम लोग देख लेंगे। और इस टॉपिक से अभी थोड़ा हम लोग हटेंगे और एक नया एक एक्टिविटी। और तुम्हारे टेक्स्ट बुक में जिनके पास एनसीईआरटी बुक है वो एक पेज निकालेंगे, हम भी बुक निकाल लेते हैं। एक कंट्री है आइवरी कोस्ट, वहां पे जो है, चलो लिखते हैं कंट्री का नाम है आइवरी कोस्ट। इस कंट्री का नाम है आइवरी कोस्ट, अफ्रीका में है। अफ्रीका का इधर में कहीं एक जगह है आइवरी कोस्ट, छोटा सा एक कंट्री है। ये कंट्री के जो डिसीजन है, इन्होंने एक डिसीजन लिया कि एक शिप आएंगे जैसे, और वो यहाँ आके समुद्र किनारे में डंप करेंगे। एक शिप में पूरा 500 टन जो है, एक शिप में 500 टन जो है वो टॉक्सिक केमिकल था। और ये कंट्री अलाउ कर दिया, उनको पैसे मिल गए इसके बदले में, इस डिसीजन के बदले में। ये शिप गया खरीद के यहाँ पे समुंदर में, और थोड़ा जमीन में भी जाके वो टॉक्सिक या पॉइजनस केमिकल जो है वो पैसे के बदले में अलाउ कर दिया डंप करना। ठीक है, पहला ही दिन तो कोई नुकसान नहीं होगा, एक दिन में कुछ नुकसान नहीं होगा। धीरे धीरे वो सॉयल में परकुलेट कर गया टॉक्सिक केमिकल, और वो वाटर के साथ जो है मिक्सअप होने लगा। आसपास के जो है पेड़ पौधे पर जो है वो असर करने लगे। कॉमन पीपुल जो वहाँ नजदीक में रहते थे उनको पेट दर्द होने लगा, और उनको डायरिया होने लगा, उनको जो है सर दर्द होने लगा, दो चार जन को उल्टी होने लगा। तो नौसिया, वॉमिटिंग है ना, स्टमक पेन और इस तरह डिजीनेस, तरह तरह के सिम्टम दिखने लगे। दो चार लोग मारे भी गए, और कम से कम कितने हजार लोग जो है वो हॉस्पिटलाइज भी हुए। 26,000 वेर ट्रीटेड इन द हॉस्पिटल। तो ये जो है हम आइवरी कोस्ट का एक एग्जाम्पल है, जो बुक में लिखा हुआ है वही हम तुम लोग को भी बता रहे हैं। और ये आइवरी कोस्ट का जो कैपिटल है वो अबिजान है। आइवरी कोस्ट का कैपिटल अबिजान है। और ये फुटबॉलिंग नेशन है, बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर दिए हैं। यूरोपियन यूनियन के मैचेस होते हैं तो इनके प्लेयर्स खेलते हैं। तो इसका मतलब यहाँ के प्लेयर अगर यूरोप के लिए फुटबॉल खेलते हैं तो यूरोपियंस लोग इनके इस कंट्री को भी अपने कॉलोनी बनाए थे। आज भी ये लोग शायद जो है इंडिपेंडेंट तो है, लेकिन इनके इन्फ्लुएंस दिख जाता है, ये डिसीजन ले लिए पैसे के एवज में, और अपने पर्यावरण के बारे में नहीं सोचे। और ऐसे लोग जिनकी जान चली गई, तो कुछ लोगों को स्किन रैश हुआ, फेंटिंग हुआ, डायरिया हुआ, और जो है नौसिया, वॉमिटिंग, ये सब हुआ। 26,000 लोगों का ट्रीटमेंट हुआ। ये जो है
ये लोग कोई और कंट्री में रहते तो क्या हॉस्पिटल में एडमिट होते? क्या ये लोग जो है अपने कंट्री का ही खुद वेस्ट को जो है प्रोड्यूस किए, या ये बाहर का वेस्ट डंप करना अलाउ किए? ये क्वेश्चन है। ये दूसरे कंट्री का वेस्ट को अपने टेरिटरी में डंप करने दिए, बदले में उनको पैसा मिल गया। अफ्रीका में आज भी इतने इतने भोले भाले लोग हैं जिनको ये कहा जाता है कि तुम्हारे बॉडी में एक जो किडनी है वो ऑपरेशन करके हमको बेच दो, और जब तुम नॉर्मल हो जाओगे तो जैसे पेड़ में दोबारा फल लगता है वैसे ही तुम्हारे पेट के अंदर में भी नया किडनी बन जाएगा। तो अफ्रीका के भोले भाले और वहां के ट्राइबल लोगों की किडनी निकाल ली जा रही है सर्जिकली। तो ये लोग जो किडनी निकाल ले रहे हैं, क्या ये लोग क्राइम कर रहे हैं? क्या वो भोले भाले लोग, अनजाने लोग वाकई में अपने बॉडी के बारे में अगर पढ़े होते, बायोलॉजी अगर उनको पढ़ाया जाता कि बॉडी के पार्ट्स क्या है और उनके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वो रीग्रो करेगा कि नहीं, तब क्या वो तब भी डिसीजन मान लेते? क्या अगर उनके गवर्नमेंट को ये टॉक्सिक वेस्ट का नॉलेज होता, इनके कंसिक्वेंस पता होता, या ये पूछ लेते कि आप अपने कंट्री में क्यों नहीं वेस्ट डंप कर रहे हो, आप तो प्रोडक्ट अपने कंट्री में बनाते हो, वेस्ट डंप करने के लिए अब जगह क्यों खोज रहे हो? So these are the questions, and these are the questions again which indicate about the status of development. कि अफ्रीका के जो डिसीजन मेकर है उनको अपने कंट्री से कितना प्यार है यहाँ प्रूव हो गया। इंग्लैंड और अमेरिका अगर अगर गंदगी फैला रहे हैं तो वो अपने कंट्री को बचा रहे हैं उसमें सबसे पहले, और दूसरे जगह में जाके टॉक्सिक वेस्ट डंप कर रहे हैं। तो इसमें लिख रहा है मल्टीनेशनल कंपनी डीलिंग इन पेट्रोलियम एंड मेटल हैड कॉन्टैक्टेड ए लोकल कंपनी ऑफ आइवरी कोस्ट टू डिस्पोज द टॉक्सिक वेस्ट फ्रॉम इट्स। हु आर द पीपल, पहला क्वेश्चन है, हु आर द पीपल हु आर बेनिफिटेड एंड हु डिड नॉट बेनिफिट? वो 26,000 लोग जो अनजाने में हॉस्पिटल गए, अपना नौकरी का एक दिन का हो सकता है तनख्वाह कट गया होगा, किसी का परिवार में और दिक्कत आया होगा, किसी का वाकई में पैसा नहीं था, अब उनको हॉस्पिटल का चक्कर लग गया, दो चार लोग मारे भी गए, डेथ भी हो गया। तो इनके लिए गवर्नमेंट क्या पैसे देके खाली छुटकारा पा जाए? क्या ये पढ़े लिखे लोगों का क्या ये चरित्र स्वभाव ऐसा ही होना चाहिए? हमारे कंट्री में क्या हुआ, जब अंग्रेज लोग आए थे तो वो लोगों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट किए। कैसे? वो मेटल का क्राइस्ट दिखाते थे और उसको आग में जला के दिखाते थे कि देखो हम लोग का भगवान जो है वो जीसस क्राइस्ट है, उसको आग में डालेंगे तो कुछ नहीं होगा। और वो हमारे मूर्ति और हमारे पत्थर के मूर्ति और मिट्टी के बने हुए मूर्ति और हमारे गॉड को वो आग में जला के दिखाते थे, देखो तुम्हारा गॉड जो है वो कमजोर है और हमारा गॉड जो है वो स्ट्रांग है, इसलिए क्रिश्चियन बन जाओ और तुमको हम जमीन देंगे, नौकरी देंगे, रेस्पेक्ट देंगे, इंग्लैंड घुमाएंगे। ये करके उन लोगों ने उस समय जो है कन्वर्ट किया लोगों को। तो ये सारी चीजें जो है नेशनल डेवलपमेंट का है, ये सारे चीजें जो है हमको आज सोचने पर मजबूर करते हैं। वी कैन आस्क मोर क्वेश्चंस। एक और है क्रिप्टो करेंसी, अभी डिजिटल करेंसी, पुराने वाले करेंसी और नए वाले करेंसी। नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे मनी एंड क्रेडिट, थर्ड चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी होगा तुम्हारा, वो भी पढ़ेंगे, थर्ड चैप्टर मनी एंड क्रेडिट। तब हम तुमको बताएंगे क्रिप्टो करेंसी, तुमको हम बताएंगे किसमें जल्दी डेवलपमेंट होगा। और बच्चों का चॉइस और बूढ़े लोगों का चॉइस अलग अलग होगा। बच्चे, बूढ़े, औरत, बीमार, फिर मेंटली कोई लोग हो सकते हैं कि चैलेंज हो, फिजिकली चैलेंज लोग हो। तो एक कंट्री में वैरायटी ऑफ जो है ह्यूमन बींग्स रहते हैं, सबको लेके इंक्लूसिव थॉट्स डेवलप करना, इंक्लूसिव अप्रोच एंड इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में अगर हम थोड़ा एक कदम भी आगे बढ़ पाए तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। एक एक कदम भी हम लोग चलते हैं और वर्ल्ड के हर कंट्री एक एक कदम चलता है तो भी ये हमारे मैनकाइंड के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा।
गाजा अभी जो है बेचारा चौतरफा मार खा रहा है। गाजा खुद ही टेररिस्ट रूल्ड है, हमास उसको कब्जा करके रखे हैं। अभी इसराइल से हमास मारपीट किया, क्राइम किया, वो भाग गया, और बेचारा कॉमन पीपल वहां पे अभी मर रहे हैं, भुगत रहे हैं। और यूनाइटेड नेशन हाथ पे हाथ धरे बैठी हुई है, केवल मीटिंग कराती है। मीटिंग कराती है, कभी अमेरिका में, कभी इजिप्ट में, कभी सूडान में, कभी कहीं मीटिंग हो रही है, न्यूज में केवल आता है कि बातचीत हो रहा है। रियल जो उसके सॉल्यूशन है वो तो कॉमन पीपल खुद अपने बता देंगे कि कितना उसमें वो लोग को राहत मिला है। लड़ाई रुक गया है, राहत कितना मिला है ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन कॉमन पीपल वहां के जरूर अफसोस कर रहे हैं कि मैं कौन से प्लेनेट में, कौन से कंट्री में फंस गया हूँ आके। तो यहाँ पे है तो इंक्लूसिव ग्रोथ मेरा तरफ से एक पर्सनल जो है हम टर्म यूज किए हैं, जिसमें सबके बारे में अगर हम अच्छा सोच रहे हैं तो उसमें मेरा ही भला होगा। ठीक है। अब इस सारा टॉपिक को डिस्कशन बंद करना होगा। जो है इकोनॉमिक्स क्या कहता है वो हम लोग को, 1-2 मिनट बच रहा है इसमें लिख देते हैं एक क्वेश्चन में। हाउ टू कंपेयर, अब और लेक्चर नहीं, अभी सीधा सीधा मुद्दे की बात होगी, हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्री। हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज, इसमें सीधा डायरेक्ट ये है कि मेरा लैपटॉप 50,000 का है, तुम्हारे पास मोबाइल 20-25-50,000 का है। मेरा लैपटॉप 1 लाख का होता तो नेट और अच्छा कैपेसिटी, तुम लोग को बहुत जन को बोर्ड नहीं दिख रहा है। हो सकता है इंटरनेट मेरा खराब हो सकता है इसमें अभी और भी पैसे खर्चा करें तो इनका कैमरा का कैपेसिटी हम बढ़ा ले, या इसको रिप्लेस करके नया लैपटॉप ले ले। सीधा बात है, पैसे से ही दुनिया अभी कनेक्टेड है। हाँ सर, वो हम नहीं बता रहे सर, अभी ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सीधा सीधा पैसे से सब जुड़ गया है, और डायरेक्टली कंट्री को कंपेयर करने का एक ही तरीका हुआ है, इनकम। और इनकम में भी पर कैपिटा इनकम, इसको वर्ल्ड बैंक भी अपनाता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। और ये बहुत साल पहले से ये डिसाइड हो गया था, पर कैपिटा इनकम से कंट्री को कंपेयर करें। फिर धीरे धीरे रिसर्च होते गए, और इसमें नए नए इंडिकेटर और पैरामीटर हम लोग जोड़ने लगे। कंट्रीज को कंपेयर करने के लिए पैरामीटर हम लोग जोड़ने लगे। तो अब जब क्लास में आएंगे तो तुमको हम टूल्स एंड पैरामीटर्स बताएंगे, जिससे कंट्रीज को जो है अच्छा या बुरा, या उसमें जो है डेवलपिंग वो कौन स्टेटस में है, वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। थोड़ा बुक रीडिंग करके रखोगे, और ऑफलाइन क्लास में हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, टिल देन बाय बाय फ्रॉम माय साइड।